Good morning students, this is Nidhi Mittal. I am your new English teacher. As your previous teacher Miss Priya told me that she started grammar portion and completed subject verb agreement. The next topic is tenses. So we are going to start tenses because this is the basic of English grammar. So let's start with this. As in earlier classes you have already known कि जो tenses होते हैं it is of three parts. We have present tenses, past tenses and the third one is the future tenses. These are further divided into four parts. ठीक है, इनके four parts होते हैं. जैसे the first one is simple, then the continuous, then perfect and the last one is perfect continuous. So let's start with present. Clear? So first type is present simple. This is the simple present tense or also known as indefinite. Present indefinite sentences. The rule is V1 plus S और ES. हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर में हमने अप्लाई करना है V1 प्लस S और ES and in plural we apply only the V1 and also with I we also apply V1. So this is the rule of this present tense. Now we start some examples. When we start simple present, we have some conditions. The first condition is regular actions. Clear? Simple present हम कहाँ अप्लाई करते हैं? Simple present हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे रूटीन एक्शंस होते हैं, हमारी जो हैबिट्स होती हैं. जैसे कि he smoke. इज इट करेक्ट? अब ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो वी हैव टू अप्लाई नॉट स्मोक, इट शुड बी स्मोक्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ वी अप्लाई एस और ई एस. क्लियर? ये उसकी हैबिट है, वो स्मोक करता है. शी ऑलवेज, वो हमेशा. कम्स लेट, वो हमेशा ही लेट आती है. आई रीड newspaper in the evening. ठीक है, मैं हर रोज सुबह मॉर्निंग. and they join yoga classes. These are some examples of routine actions. Another one is universal truth. जब बात होती है यूनिवर्सल ट्रुथ की तो वहाँ पर भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही अप्लाई करते हैं, कुछ और वहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकता. द सन राइजेज इन द ईस्ट. दिस इज द एग्जाम्पल. और ये सारी एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. एफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस. इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस. कोई भी सेंटेंस होता है उसके तीन पार्ट होते हैं. एक तो पॉजिटिव होता है वो, या नेगेटिव, या फिर वो इंटेरोगेटिव होता है. पॉजिटिव के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रूल. नेगेटिव की अगर बात होगी तो डू नॉट लग जाएगा या तो फिर डज नॉट लग जाएगा. डू नॉट लगेगा आई के साथ प्लस प्लूरल के साथ, और डज नॉट बी अप्लाई विद सिंगुलर. With in interrogative case the same as above, do or does. Same rule follows. Next, we
give some examples of negative sentences. So, she dash not go for a picnic. So here we apply does not. Do you know me? This is of interrogative sentence and this is the negative sentence. Let's, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Now let's start book. Here is the book. Page number 1. Tenses worksheet first. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. इसके मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं. ऑरली मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है. Now we will start page number 2, portion B. ठीक है. This is the B portion और यहाँ पर we have a passage. So we have to apply simple present tense in this gaps. Clear? So first of all हमारे पास हमने स्टडी करनी है इसकी. This is the yoga. Yoga dash a great stress buster. B का मतलब क्या होता है? B एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हम 3 चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. In case of present indefinite, is, am या फिर are. So yoga क्या है? It is a singular subject, so we apply is. Yoga B तो नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? is. Yoga is a great stress buster. ठीक है. It dash in improving concentration. Concentration को improve करने में it helps. तो help नहीं आकर क्या आएगा हमारे पास? helps. It not only ensure नहीं आएगा, क्या आएगा? ensures. क्योंकि ensures किसके साथ जा रहा है? We apply it with it. ठीक है, सिंगुलर के साथ जा रहा है. डिसिप्लिन, ठीक है, ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है. बट ऑल्सो टीच. टीच की जगह हमने अप्लाई क्या करना है? टीचिंग. और साथ में हमें क्या टीच करता है? हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल. कि अपने स्ट्रेस लेवल को हम कैसे हैंडल करके उसे कॉप अप कर सकते हैं. इट ट्रेन्स, ये हमें ट्रेनिंग भी देता है. किस तरह की ट्रेनिंग देता है? इट ट्रेन्स आज टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर. कि अपने अंदर जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव मैनर में हम लगाएं. टुवर्ड्स अ पॉजिटिव मैनर वी अप्लाई आवर एनर्जी. योगा एक्ट एज अ मैजिक हीलर. हीलर का मतलब क्या होता है? जब हमें चोट लगती है तो हमारी हीलिंग जो करता है उसे हम हीलर कहते हैं. जख्मों को जो भरता है उसे कहते हैं हीलर. तो योगा एक्ट्स एज अ मैजिक हीलर. ये एक जादुई हीलर जैसा होता है. इट अनरेवल मैनी हिडन क्वालिटीज़. अनरेवल का मतलब हो गया निकालना. ठीक है, ये हमारे अंदर से बहुत सी छिपी हुई क्वालिटीज़ को बाहर निकालता है. दैट वी पोजेसेस इन, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, जो कि हमारी अपनी होती हैं. तो पोजेस लिखा था यहाँ पे. पोजेस के साथ क्या आएगा? ईएस, पोजेसेस. सो दिस इज द पार्ट बी एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये हमारा सेकंड पार्ट था. I hope you can do the third part also, C portion, and if there is any problem I am here. Thank you.